We have been gathering reports from different parts of the city in the last more than 50 days during the period of lockdown, and today is the last day of lockdown where the volunteers, the corona fighters, corona warriors are being felicitated here by the ADM. Here you can see that the people who are coming here are being felicitated by the ADM, South ADM, who is not only distributing these packets to him but also on these warriors flower petals are being showered. You see, these are the visuals coming in where flower petals are also being showered on these corona warriors who have been fighting this fight. What we are learning is that these are the fighters who were deployed at quarantine centers and who were taking care of all the quarantine centers where the COVID-19 patients were admitted and also treated. We'll try to take in a word from South ADM also and try to understand as to how is he feeling, because that's a big day and that's the last day of the third phase of lockdown, and he, along with the organization Human Care Welfare Association, they are now felicitating all the corona warriors who have been working relentlessly to fight this pandemic. We'll try to speak to ADM also. कैसे महसूस कर रहे हैं सर आप? आज बड़ा दिन है, लास्ट है थर्ड फेज लॉकडाउन का. आज आप उन सभी वॉरियर्स को फेलिसिटेट कर रहे हैं जो यहाँ पहुँचे हैं. बिल्कुल, एक्चुअली पे जो सिविल डिफेंस के हमारे वॉलंटियर्स हैं उन्होंने मतलब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है. जब से ये कोविड का पूरा डिज़ास्टर स्टार्ट हुआ है तो हमारे क्वारंटीन सेंटर्स में हमारे जो फूड लोकेशन जहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अभी जहाँ से हम लोग माइग्रेंट्स को भेज रहे हैं, हर जगह पर ही सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने काफ़ी मतलब वर्थ अप्रिशिएटिंग जॉब किया है, डे एंड नाइट वॉलंटरी और पूरे डेडिकेशन से. तो इसके लिए ये जो ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन संस्था है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हम लोग इनको ऑनर कर रहे हैं और इनको हम लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं, जिससे कि हम इनको जो इन्होंने किया है उसके लिए कुछ रिगार्ड्स कन्वे कर सके. So that's the effort in which the administration is trying to boost the morale of all the warriors who are fighting this fight in these three phases. We'll also try to see what is there in these packets which is being distributed to the people here. Mr. Varun is also here, who is not only sanitizing the hands of corona warriors, but also we'll try to understand from him what is there in these food packets. Sir, if we can understand from him, क्या-क्या है पैकेट्स के अंदर, अगर आप बता दें जो आप इन वॉरियर्स को दे रहे हैं. जी, सबसे पहले हम ह्यूमन केयर वेलफेयर एसोसिएशन से इन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और सबसे पहले हम उन लोगों को हैंड सैनिटाइज करा रहे हैं. साथ में जो पैकेट्स हैं उस पैकेट के अंदर हम उनको एनर्जी ड्रिंक के तौर पे वाटर बॉटल है, मिल्क शेक है, उसके अंदर बनाना है, उसके अंदर सैनिटाइज़र हम उन लोगों को दे रहे हैं. हम उन्हें चिप्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. तो काफ़ी चीज़ें 8 आइटम्स हम उन लोगों को इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं इस किट के अंदर, एसेंशियल किट में. So that's the last day of lockdown, and to boost the morale of all the corona fighters, this exercise is being done. I would ask Reshwar to come with me so that we can try to show our viewers what is there in these items which is being given to the fighters, corona fighters. See, there is a packet of chips, and then yes, there is a hand sanitizer over here. There is a biscuit, there is a mask, and there is milk, and there is a water bottle for every corona warrior. For every corona warrior. So that's the exercise which is being done here by the administration in coordination with this organization, which is doing this to boost the morale of these corona warriors who have been fighting this fight relentlessly in the last 3 phases of lockdown. मैं जनपद गौतम बुद्ध नगर के जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जो भी उनका सहयोग रहा है, जिसके वजह से कोरोना कर्व को हम काफ़ी हद तक कंटेनमेंट कर पाए हैं. 185 लोग हमारे डिस्चार्ज होके घर गए हैं, तो लगभग 65 केस अभी एक्टिव हैं. यह जनता ने लॉकडाउन का अनुपालन किया है और उसके साथ ही साथ जो भी नॉन कंटेनमेंट जोन्स में औद्योगिक इकाइयाँ शुरू हुई हैं, प्राइवेट ऑफिसेज शुरू हुई है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, बिल्डिंग एक्टिविटीज़ शुरू हुई है,
तो आने वाले दिनों में भी कोशिश यही रहेगी कि कोरोना को भी कंटेन करें, साथ में जो भी अन्य गतिविधि है उसको भी साथ में लेकर जाएं। सर लेकिन जो केसेस हैं वो रोजाना बेसिस पे 3-4 केसेस या कहीं ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो उसको लेकर भी कुछ चिंता बढ़ी है सर प्रशासन की कि इतना कुछ सफलता मिलने के बाद भी जो केसेस हैं सर लगातार सामने आ रहे हैं? हमें सतर्क रहना है, हमें पैनिक बिल्कुल ही नहीं करना है। सतर्कता और स्वयं की जागरूकता, अन्य को भी जागरूक करना आज की तारीख में, आने वाले दिनों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उस मामले में मैं अगेन जनपद गौतम बुद्ध नगर के समस्त एक सम्मानित निवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश में आरोग्य सेतु ऐप में यहाँ नंबर 1 पोजीशन पे आप लोगों की संख्या है। अन्य भी जितने भी प्रोटोकॉल फॉलो करने के संबंध में जागरूकता है वह भी जनपद के निवासी बहुत ही अच्छे से फॉलो। सवाल माइग्रेंट लेबर को लेकर है, क्योंकि दिल्ली का बॉर्डर टच होता है और बहुत सी लेबर है जो हरियाणा से, राजस्थान से होकर यहाँ से गुजर रही है। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि लेबर को जाने का इंतजाम किया जाए। किस किस तरह के इंतजाम आप लोगों ने किए हैं? बसेज हैं, ट्रेन हैं या कोई और व्यवस्था की है, और कितने लेबर को भेज चुके हैं आप तक? प्रशासन द्वारा राज्य सरकार के निर्देश पर स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है समस्त अधीनस्थ विभागों को और अधिकारियों को, कोई भी लेबर को पैदल चलने ना दिया जाए। उनको सम्मानजनक तरीके से शेल्टर होम्स में रखते हुए, खान पान की व्यवस्था करते हुए, उसके बाद उनको अपने मूल निवास स्थान तक, गंतव्य तक भेजने के लिए अगर लॉन्ग रूट डिस्टेंस है तो ट्रेन्स की व्यवस्था की जाएगी, शॉर्ट रूट डिस्टेंस है तो बसेस की व्यवस्था की जाएगी। कंटिन्यूसली ट्रेन्स और बसेस की व्यवस्था करते हुए उनको जो भी मजदूर प्रवासी श्रमिक भाई और बहन हैं उनके मोबाइल में मैसेज जा रही है, उसके बाद फ़ोन करके भी उनको बताया जा रहा है कि उनको पर्टिकुलर डेट एंड टाइम देते हुए उनके गंतव्य जिले हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिरी सवाल कि कल से सर लॉकडाउन शुरू हो जाएगा 4 मेट्रो चलने की ऐसी जानकारी कि मेट्रो चलाई जाएगी, और क्या कुछ सर छूट मिल सकती है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? ये जो भी भारत सरकार की और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के बारे में निर्देश होगा उसको 100% अनुपालन जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी किया जाएगा। जाते ध्यान आया कि क्या प्रशासन ने ऐसे आदेश भी दिए हैं कि जो भी कोई लेबर अगर घूमती पाई जाती है उस थाना क्षेत्र में, उस थाना क्षेत्र के अधिकारी की कार्रवाई की जाएगी, या कुछ ऐसा निर्देश दिए? क्योंकि गाजियाबाद में सर इस तरह की देखने में आया है। जैसे हमने कहा कि सारे अधीनस्थ अधिकारियों को सेंसिटाइज किया गया है, समस्त विभागों को संवेदनशील रहते हुए जितने भी प्रवासी श्रमिक भाई बहन हैं उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार रखते हुए शेल्टर होम्स में ले जाकर खान पान की व्यवस्था करते हुए उसके बाद गंतव्य स्थान तक उनको भेजने का व्यवस्था करने का निर्देश दिया।